पटेल। उसी के साथ में मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पर। It's on. It's on. It's Yeah, on. yeah. Hello, people. Hi, guys. Can't see a thing here. You're gonna have a problem, girl. Yeah. Can't see anyone. Hi, guys. Hello. बिल्कुल, मैं उसी के साथ मैं चाहती हूँ कि हमारी पूरी टीम यहाँ पर हमें ज्वाइन कर ले, एंड देन आई हैव क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस एक्चुअली। सो उसी के साथ में बॉलीवुड के बिग गन, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आई एम quite a questionable child. No, that doesn't make sense. Start. All right, so the big gun of Bollywood and the head honcho, obviously, of this film. Let me call on stage Mr. Sachin Joshi. उसी के साथ the hot, the happening, the gorgeous, the stunning Nargis Fakhri. No, आप ही को बुला रही हूँ मैं अगला। Again बोलूँ, the hot, the happening, the gorgeous, the stunning. No, of course, the very handsome, the dashing Vivan Bhatena on stage. Thank you so much, all you lovely people, for joining me on stage. First of all, we are also waiting for Ali. The moment he comes in, I'll ask him also to join us. So the film is actually releasing on the 11th, and we are waiting for the release on the 11th of January. So... No, I think there's a little correction. Oh, is it? Yeah, the film was releasing on 11th, and now there's a change of date. The film has been postponed for 3 weeks on 1st of February. But the reason I would like the director, the creative guy, I think he's the best man to answer the question. Sir, please. Thank you. Yeah, well, we had to, I wouldn't say unfortunately, we had to postpone the release by 3 weeks. We have decided to. Because, to put it in a word, the VFX. You see, the VFX that we're trying to achieve in this film are top class. I mean, there's something that the Hindi audiences would never have seen till now. I promise you that. And trying to achieve that is a little time consuming. We didn't want to get into the release haphazardly and with something that is not up to the mark or something that we are not satisfied with. Sachin and me both were not. We were sure that we didn't want to release the film. Ali, you have to come up first. No, all right. Come up first. Ali has come on stage. Yeah. Hi. Nice So, to see you again. Good. So, to coming back to where I was, that because the VFX, we need the VFX to be top class, and we didn't want to release anything that is not up to the mark or something that we are not satisfied with. And hence, I requested Sachin that we might just still take time. We might have, it's miscalculated the time that's taking, the VFX is taking. So Sachin was very gracious, and we have hence postponed it by 3 weeks, and that's it. So it's 1st of Feb now. It's not the 11th of Jan. All right, so actual release date of the film Amavas is now 1st of February 2019. Please remember that. भूषण जी, आप बात कर ही रहे थे, तो मैं आपसे अभी पूछना चाहूंगी कि आपका ये लगाव लेकिन हॉरर फिल्म से क्या है? मतलब हमसे पूछे तो हम तो दूर भागते हैं ऐसी सब स्टोरीज से, पर आपको क्या खींचता है? भूत खींचते हैं आपको? मुझे डरना और डराना अच्छा लगता है। और अब क्या करूं, ये देखो वहाँ खड़ी है, मुझे देख रही है। भूत I have been fortunate. Like my first film, when Vikram Bhatt, my friend, he gave me my first film, 1920, Evil Returns. I had never shot horror before that. And I was skeptical because horror is very difficult. It's difficult to scare people, though I'm told that I scare people very easily, but that's me personally. But it's difficult to scare people on screen. But 1920 did well. Evil Returns did well. Ekta gave me Ragini MMS2, which did better. And Alone after that, which also did very well. You missed Alone this time. Oh, yes. Well, it's been the audience and the industry expect horror from me, and so be it. But it's not that I don't have any other stories to tell. I have many other stories, and hopefully one day I will make something which is non-horror also. Okay. But till now, yes, this is my 4th horror film in succession.
चलिए, मैं तो कहती हूँ कि आपको हॉरर ही बनाना चाहिए बिकॉज एज यू सेड पीपल आर लविंग इट. सचिन, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज योर फर्स्ट हॉरर फिल्म जिसमें आप एकदम पूरी तरह से इस जॉनरे में घुस रहे हैं. एंड आई ऑल्सो हर्ड दैट यू एक्चुअली शॉट एट लोकेशंस विच वर क्वाइट हॉन्टेड, या फिर -2 डिग्रीज में शूट करना वैसे ही लगता है कि वो -15. -15 खुद भूत नहीं बन गए आप ऐसे शूट इतनी करते फिल्म हुए? में तो कोई भी भूत बन जाएगा. एग्जैक्टली. Well, yes, it is my first horror film and मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूँ. पहले मैंने एक्शन किया, फिर उसके बाद ड्रामा, सटायर, कॉमेडी किया, जी. फिर एक्शन किया. See, horror is something that I always enjoyed. मेरा ये सबसे favorite genre है, to be honest. लोगों को पता नहीं है, but something that I really enjoy. You know, I'm an avid follower of horror films. तो मुझे जब भूषण से बात हुई, पहले भी हमारी काफ़ी दफ़े बात हुई कि लेट्स डू समथिंग टुगेदर, बट जब इस आइडिया पे डिस्कस हुआ, विक्रम वाज इन बिटवीन एंड ही सेट के एक अनोखा आइडिया है, समथिंग न्यू, समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, हॉरर में नहीं है, क्लीशे नहीं है, तो मैंने बोला चलो देखते हैं. एंड द मोमेंट मी एंड भूषण स्पोक, आई थिंक लेस देन 3 minutes it took to finalize this movie. Wow. And that's how the journey began. सी, हॉरर फिल्मों में मैंने जो नोटिस किया है अभी तक कि हिंदुस्तान में या कहीं पे भी वर्ल्ड में क्लीशे हॉरर फिल्म्स बनती है, बट उनका प्रेजेंटेशन, उनका स्क्रीन प्ले, एक कहानी होनी बहुत ज़रूरी होती है, जो इस फिल्म में मुझे दिखी है. और ख़ास करके इस पर तवज्जो दिया है भूषण ने कि एक हॉरर फिल्म बनाए, ज़रूरी नहीं है कि हटके बनाने का कोई प्रयास किया है. The point was always about to make a good horror film with a great subject, great storyline, great screenplay, and how to create the startle effects in the right places. मतलब audience will be in tremendous intrigue कि कब क्या हो रहा है. That is what Amavas is all about. मैं कहती हूँ कि आपको ऑडियंस को खड़े रखना चाहिए अपनी फिल्म के दौरान, क्योंकि बैठ तो वैसे भी नहीं पाएंगे. The moment they'll start jumping. The idea is to make a edge of the seat thriller, Right. horror, and that's what Amavas is. Absolutely, and I think trailer ने काफी कुछ दिखा दिया हमें already. Nargis, I was waiting to just say this to you. We missed you. लंबे समय के बाद आप यहाँ पर आई हैं, and let me tell all the media members कि आप actually लंदन से सिर्फ इस फिल्म के प्रमोशन के लिए यहाँ पर आज ही सुबह आई हैं. So first of all, thank you so much. कैसी हैं आप? I'm good. It's so nice that you missed me. Thank you. We really missed you with all our heart. क्या सोचना है आपका इस फिल्म के बारे में? How dear is it to you? How close to your heart is this film? Because आप काफी एक ब्रेक के बाद आ रही हैं. So what are you feeling? Well, first off, horror is my favorite genre of film. I've watched like every horror film, and my friends think I'm crazy because I never get scared. Yeah. But I will say, when you gave me this opportunity to do this film, I was so excited because it was like a dream come true. You know, you love watching horror, but to be in it is something totally different. And I was so excited because I kind of get scared when I watch horror, but not really that much since I watch it so much. So I was like, oh, okay, what is it going to be like being in one? Well, let me tell you, I got scared. And it was good. So I can't wait for everyone to see it. Yeah, she scared us a lot. I scared you a lot too. No, but you should have seen her face when I was narrating the film to her. She was listening to me as if, and she was completely gobsmacked. She loved the film, and that's why the moment I finished narrating, she was on board. I mean, I remember, I was so into it. I was like, oh my God, yeah. Yeah, she was amazing. when she Wow. was And she there. anyway mentioned कि उनको डर लगता नहीं है, और वो डर गई मतलब कुछ तो हाँ. है. क्या बात है. विवान, एक सवाल जो कि मुझे पता है कि आप लोगों को तैयार होना चाहिए, मीडिया भी सबसे यही पूछने वाली है कि जब आप ऐसी एक फिल्म शूट कर रहे थे, तो क्या आपके साथ में सच में भी ऐसे कोई इंसिडेंट हुए which just left you like spellbound, like oh my god, like this can happen? हम गोरिंग कासल में शूट कर रहे थे, और वहाँ पर जो लेडी गोरिंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. अच्छा. क्योंकि जो हमारी रूम थी, आई थिंक वी हैड जॉइनिंग रूम्स, एंड वहाँ से थ्रू द रूम एक एलिवेटर था जिसको आई डिडंट इवन नो दैट देयर वाज एन एलिवेटर, एंड सडनली आई सी कि कोई ऊपर जा रहा है. इट लुक्स लाइक समबडी इज फ्लोटिंग बिकॉज कांच की एलिवेटर है, और एक बुड्ढी बुड्ढी नहीं बोलना चाहिए, एल्डरली लेडी जा रही है ऊपर, और विथ लाइक 2 dogs लाइक दिस,
straight up. It's quite scary. Yeah, she's very white, and suddenly she would like come into the room and like, oh, this pillow is very expensive, please hide it, and like that kind of thing. So it was quite funny because we'd be doing late night shoot kar rahe honge, obviously nights and sari, and you know sometimes you're like just waiting in the room, and suddenly one old lady's walked into the room and she's changing the sheets or doing something suddenly randomly. तो काफी डरावना था. वाओ ओके मेनी मोर सच स्टोरीज आप लोग याद करके रखिए बिकॉज ये तो निकलने ही वाला है अभी आने वाले कुछ समय में. बट थैंक यू सो मच फॉर दैट. अली, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम सब लोग आपको देखते हैं इन दिस कॉमिक कैरेक्टर विच ऑब्वियसली यू हैव एस्ड ऑन इंडियन टेलीविजन. एकाएक हॉरर फिल्म में आना, ये कैसे किया आपने? आप करना चाहते थे अभी इस बार, या फिर भूषण जी ने आपको कन्विंस किया? कैसे किया? दिस मैन इज रिस्पॉन्सिबल, इज माय फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड. या I can say because he's got white hair now. No, that's just for the effect. No, डरावना see, मुझे effect. दो तीन लालच थी ये फिल्म करने के लिए. एक तो डेफिनेटली भूषण. Okay, we go long ago. How long ago? God knows how long ago. And I tried male When I characters. was not old. No, yeah. I tried male characters, female characters also. तो इस बार लगा था भूत का कुछ देगा मुझे, तो वैसा तो नहीं हुआ. एंड ये जॉनर जैसे सब कह रहे हैं, हम हमेशा देखते, मतलब बचपन से एक बोलते हैं ना, डरते सब है लेकिन देखते सब है. पर इसमें काम करने का एक अलग ही मजा है, इसका एक लालच है. बचपन से हम जो फिल्में देखते थे, मुझे भी ऐसे लगा था मेरे भी कुछ ऐसे सीन्स होंगे स्विमिंग पूल में, पानी में नहा रहा हूँ तो अचानक लाल पानी आ रहे, ऐसा पानी कुछ में नहीं नहाते हुआ. हुए देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है. तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ. ही गिव मी अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, एंड ट्रस्ट मी उसको करने में भी बहुत मजा आया. मैं इतना डरता नहीं हूँ फ्रैंकली, मतलब ये सब चीज़ों से कहते हैं ना कि ये जहन में अगर आपके आ गया तो आप यहाँ खड़े खड़े भी डर सकते हो. बिल्कुल. अगर नहीं आया तो नहीं आया. पर जो लोकेशन इन्होंने ढूंढा था, जहाँ ले गए थे ये, वो जो कैसल था, वो गोरिंग हाँ, वो पता नहीं कहाँ, एक तो मतलब लंदन जा रहे, वहां से भी ऐसे 2.5-3 मतलब घंटे दूर हम कहाँ ब्राइटलैंड के जहाँ थे, वो कैसल बहुत ही डरावना था बिल्कुल. उसमें एक बुड्ढी रहती थी और उसके 2 बेटे, ऐसा मैंने सुना. बेटे को कभी नहीं देखा मैं. आप एक बुड्ढी आती थी बिल्कुल सफेद बाल में, पता नहीं सफेद बाल का क्या ऑब्सेशन है. उनके भी आते थे. उनका एक कुत्ता था, जो कुत्ते को लात मारो ना तो लंदन से ईस्ट लंदन, वेस्ट लंदन कहीं भी पहुंच जाए, इतना छोटा सा. ही सेड, मतलब राइटली ही सेड कि उसको सिर्फ शी वाज ऑब्सेस्ड विद हर एंटीक्स. उससे भी पुराने एंटीक्स उसके पास पड़े थे. यू नो हाउ ओल्ड इज दिस, गेट अप, डोंट सिट ऑन द शीट. ये वो बस पूरे, हम जितने दिन मैं वहां था वो उठा लेती थी. फिर सचिन को देखते थे, सचिन ऐसे करता था तो हम भी ऐसे रुक के चुप हो जाते थे. एंड एक्चुअली वो आप जब फिल्म देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा इतना उसमें ऐसा बंगला उन्होंने, ऐसे जगह लोकेशन इन्होंने फाइनलाइज किया था जहाँ लाइटिंग की भी जरूरत नहीं थी. अच्छा. और मतलब वो जो पैसेजेस उसके थे रूम्स के बीच में, एक सीन इनको शूट करना था, ठंड में ले गए थे -2. एंड फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ वहाँ पर पढ़ता था कि एक्चुअल आपके जो मोबाइल पे जब आप टेम्परेचर देखते हो तो -2 विद द फील ऑफ -7, मतलब है ना -3. हाँ, विद द रियल फील, वैसे जैसे हम लोग यहाँ रहते -31 विद द फील ऑफ 45, राइट, तो +45. तो वहाँ था वो -2 विद फील ऑफ -11 ऐसे. तो इनको सिर्फ एक कैंडल मूव हो रहा है ऐसे एक्सटीरियर से शूट करना था. एंड जो बच्चे एडीज थे वो बोले कि सर अभी पूरा लाइट ऑफ करना है अंदर का, तो यू वांट टू कम आउट और यू वांट टू सिट इनसाइड. तो मैं बोला यार बाहर तो बहुत ठंड है, मैं यही बैठता आराम से रूम के अंदर ही. एंड बोले मूवमेंट कुछ मत करना. एंड एक बंदा खाली कैंडल ले जा रहे. ट्रस्ट मी, वो सारा मतलब उन्होंने कैसल को अंदर से इंटीरियर को पूरा डार्क कर दिया था. एंड पता है कि लोग बैठे हुए फिर भी आई कुडंट सिट देयर फॉर 30 सेकेंड ऑल्सो. माय गॉड. हाँ, जबकि हम एक्टर हैं, हमको पता है कुछ नहीं है ये, पर इतना तो जो परफॉर्मेंस आपको देखोगे स्क्रीन पे वो एक्चुअल रियल है, क्योंकि वो लोकेशन भी एक्चुअली हॉन्टेड है. लोकेशन भी अच्छा, अभी बता रहे हैं. अभी बता सच्ची. कैसल गोरिंग
एक्चुअली एक हॉन्टेड लोकेशन है, तो अमेरिका की एक कंपनी ने जो इसको रिसर्च करती है, उन्होंने भी रिसर्च किया और इस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया एज अ हॉन्टेड लोकेशन. It's on YouTube. You people can check it. चलिए ग्रेट. आई थिंक आपने इतना सब बता दिया है कि अब तो और ज्यादा क्यूरियोसिटी हमने बढ़ किसी को रही है. अब सबको अभी बताया, पहले नहीं बताया था. Vikram, we need to talk. Where's the producer? So without much ado, I think we should let the media ask a few questions. The stage is open for media question and answers. So can we pass a mic, please? Let's please stick to the movie. Thank you. Oh, you're going to say? That's fine. No, I don't mind standing. I don't mind standing. It's fine. Yeah. जैसे हम हॉरर फिल्मों की बात करते हैं तो एक बड़ा ग्लोरियस पास्ट है हिंदी सिनेमा का, जिसमें बहुत World सारे cinema का. जी जी. कौन सी ऐसी फिल्म रही है जिसने आपको डराया हो या आपको लगा हो कि इस तरह की Exorcist. जी. The Exorcist. वो मैं आई थिंक आई वाज 17 साल का था मैं जब मैंने देखी थी फिल्म, और मैंने दिन में देखी थी, सुबह सुबह देखी थी. मेरे दोस्त विक्रम भट्ट ने और मैंने साथ में देखी थी. वो भी हॉरर फिल्म बनाता है, मैं भी हॉरर फिल्म बनाता हूँ, दोनों. लेकिन हम सुबह दिन में देखने के बाद भी डर गए थे, बावजूद डर गए थे हम लोग. हमने दिन में इसलिए देखी थी ताकि डरे नहीं शायद, लेकिन फट गई थी सर, बहुत हालत ख़राब हो गई थी. तो एग्जॉर्सिस्ट फर्स्ट. ओमेन थी डरावनी, लेकिन एग्जॉर्सिस्ट से बहुत डर गए थे उस वक्त. जी. डेफिनेटली. सचिन, जाहिर सी बात है कि जिस तरह की फिल्में आपने अलग अलग तरह से री इन्वेंट किया है खुद को, क्या ऐसी चीज़ है जो आप इस फिल्म से लेकर निकले हैं या देख पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा इसमें संभावनाएं हैं या चीज़ें समझ में आ सकती हैं? वेल, जैसे आप देख रहे हैं सिनेमा प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी किस्म के नए नए टेक्नोलॉजीज़ फिल्मों में आ रहे हैं. मतलब पहले इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था कि आप VFX पे फोकस कीजिए या आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए. जिस तरह हॉलीवुड में फिल्मों में यूटिलाइज़ किया जा रहा है, उसी तरह इंडिया में भी अब यूज़ किया जा रहा है. तो वो एक चीज़ मैंने एक नयापन देखा, और वो इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है. यू नो, द फिल्म्स दैट हैव डन वेरी वेल इन 2018, अगर आप देखेंगे बाहुबली है या पद्मावती है, दे आर ऑल VFX ग्रैंडोर्स. मतलब जिस तरह हम सुपर हीरो की फिल्म अमेरिका में देखते थे, उस लाइक आई मीन उस तरह की, उस कैलिबर की फिल्में आज इंडिया में बन रही है. सो दैट इज़ अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव सीन, एंड आई वुड लाइक टू participate in making films like that. So this was my first initiative. ये मेरा पहला मौका पड़ा कि मैं टेक्नोलॉजी को सही ढंग से सिनेमा में यूज़ कर पाऊँ. नरगिस, आपके सामने कितना मिस किया इस बीच आपने भारत को और इंडियन सिनेमा को, फिल्मों को? और जैसे आपने शुरू में ही कहा कि बहुत सारी हॉरर फिल्में आप देखते हैं, आपका फेवरेट जॉनर है. I know the missing part. तो आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म्स हैं हॉरर जॉनर में? So first I'll say that I miss India very much, and it's so nice to be back, and I was super smiley and happy. I actually just landed today, so I'm jet lagging. And my favorite horror film, you know, it's kind of difficult because I don't have a favorite, but I don't know. Let's say The Conjuring. Yeah, The Conjuring was good. The Haunting in Connecticut. What is it? Connecticut. Haunting. Yeah. Then there was Get Out. It Follows. I mean, there's so many. And now Amavas. Hey. That's my favorite. Yeah. My question to Sachin sir. Any memorable moments from the set you would like to share? Well, the entire experience of shooting a horror film is a memory for itself. मतलब एक ऐसी लोकेशन पे जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे अलग अलग किस्म के एक्टर्स हैं, सबका अलग अलग तरीका शूट करने का, द एंटायर कास्ट एंड क्रू शूटिंग एक्सपीरियंस. आई मीन द मोस्ट मेमोरेबल फॉर मी वुड बी द हॉरर सीक्वेंसेस. मतलब एक तो पता था कि ये जगह हॉन्टेड है, उसके बाद अगर सबको बताएंगे तो सारे डर जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, और खुद जानते हुए किसी और को बता नहीं सकते. वॉज itself very horrifying experience for me. But at the end, those moments, those horror sequences, मतलब
जब हम लोग शूट कर रहे हैं तो वो इतना डरावना था, जब उसको एडिट पे देख रहे हैं वो इतना डरावना था, जब वो टेक्नोलॉजी या VFX के साथ आप देखोगे, it's a experience that I've never seen before. So whole experience of shooting the film was a memorable experience. Thank you. जैसे कि आपने बताया कि वो हॉन्टेड प्लेस था लोकेशन, तो शूट करने के बाद में एडिट टेबल पे कुछ दिखा आपको? वेल कोशिश बहुत की एडिटर ने देखने की, ढूंढने की, मिला नहीं ऐसा कुछ, बट यस एक मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दी, इन द सेंस नॉट ऑन द एडिट टेबल बट अदरवाइज वाइल शूटिंग द फिल्म, यू नो कभी अचानक ही क्योंकि 2 सेक्शन उस घर के बंद थे जहाँ पे हमको बिल्कुल अलाउड नहीं था जाना या हमको उस तरह जाना, तो एक इंट्रीग था कि एक बार जाके देखते हैं वहाँ पे उस तरफ क्या है छत पे जाके, तो मैंने एक बार ट्रायल भी किया, बट while shooting in the nights when I was not shooting, Bhushan told me about couple of incidents that took place. मतलब सब जो शूटिंग के इक्विपमेंट्स हैं सडनली कुछ ऑफ हो जाते थे, कुछ ऑन हो जाते थे, बट कोई रीजन नहीं होता। There was one room. मतलब कोई रीजन नहीं होता था, मतलब एवरीथिंग है, सब जनरेटर में फ्यूल भरा हुआ है, टेक्नीशियंस बराबर लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, बट कोई रीजन नहीं होता था चीज़ें बंद हो जाने का, फिर उनको स्टार्ट करो, मतलब कुछ टाइम पे गैप्स पड़ते थे शूटिंग में, नो रीजन फॉर नो रीजन, तो वो एक फीलिंग हुई थी। भूषण सर, आपसे एक सवाल है जी। ऑल्दो आपने बताया कि VFX रीज़न है रिलीज डेट चेंज करने की, लेकिन क्या एक रीज़न ये भी था कि मतलब मूवीज़ जैसे रंगीला राजा और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर क्लैश हो रही थी इस मूवी के साथ में, इसीलिए डेट्स चेंज की गई? क्या है ना, देखिए अभी साल में 52 फ्राइडेज ही होते हैं और पिक्चरें तो बहुत ज़्यादा बनती है, तो पिक्चरें क्लैश होना तो लाजमी है। वी वर एक्सपेक्टिंग अदर फिल्म्स टू गेट अ सोलो रिलीज ऑन अ फ्राइडे इज़ इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये रीज़न नहीं है ज़रा भी। अब क्या है, जैसे क्योंकि वो जो फिल्म्स हैं वो बहुत अच्छी फिल्म्स है, लेकिन उनका जॉनरा अलग है, हमारी फिल्म का जॉनरा अलग है। बात वही होगी जैसे कि एक ही दिन पे अगर टीवी पे टेनिस मैच हो और क्रिकेट मैच भी हो और फुटबॉल भी हो, तो क्रिकेट वाले क्रिकेट देखेंगे, टेनिस वाले टेनिस देखेंगे और फुटबॉल वाले फुटबॉल देखेंगे। तो ये टेंशन था ही नहीं मुझे। हॉरर वाले जब मुझे पहले दिन नहीं आते, दूसरे दिन तीसरे दिन आते, और जब आते जब पता चलता उनको पिक्चर अच्छी है तब भी आ जाते। तो मुझे रिलीज डेट मतलब सचिन एंड मी वर नॉट वरीड अबाउट दैट। इट वाज नॉट के मतलब ज़्यादा कंपटीशन है, कंपटीशन से डरते नहीं। कंपटीशन तो है, वो तो है, सारी अच्छी फिल्म है और जो फिल्म अच्छी है वो चलेगी। बट VFX वाज द रीज़न, बिकॉज VFX हमें श्योर था कि हमें टॉप क्लास करना है, और अगर हम लोग ही खुश नहीं थे तो हमें ये नहीं था कि हम ऐसे ही रिलीज़ कर दे, फ़ायदा नहीं था। So 3 weeks is not a problem, and he was gracious enough to allow me to See, adding on to him, मतलब if I'm not mistaken, हमारा शूट तो जून मई एंड में ही खत्म हो चुका था। So it's taken such a long time to release the film only purely because of VFX, technology, SFX, जो भी आप बोलोगे, post production was the major reason. मतलब काफ़ी दफ़ा contemplate किया, I mean all the producers, everybody sat and decided कि चलो target करते हैं, we were first earlier targeting October, November, वो नहीं हुआ, VFX delay है और better करना है, let's get some technicians from US, use them, let's get some people. So हर बार जो reason रहा है, it was always VFX. I mean इस बार भी 11th, I've said we were very excited, promotion, we started off putting out the trailer, teaser, everything, but same reason again. तो हर बार जो रीज़न होता है कि एक हॉरर फिल्म में हमेशा कंपैरिजन्स होता है, अमेरिका में हॉरर फिल्में बनती है, चेक चेक आ गया, चलो। तो जब भी कंपैरिजन होता है हॉरर फिल्म्स का, इंडियन हॉरर फिल्म्स है, ऑडियंस खास करके जब भी देखती है यार सेम घिसी पिटी, वही गाने होंगे, वही हॉरर होगा, वही भूत होगा, थोड़ा डराएगा और चला जाएगा, स्टोरी नहीं होती हॉरर फिल्मों में। अरे हॉलीवुड की वो कॉन्जरिंग को देखो, उसमें उसका इफेक्ट्स देखो, क्या रियल लग रहा था। सी ऑल दीज फैक्टर्स विच इज देयर इन एन ऑडियंस माइंड, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेंज विद दिस फिल्म।
even India can make horror film. India has classic horror films like Mahal, which were made in 1960s and 70s. Then we had Raat, which was done in the 90s. We've had such great films. That is something like Raz. We're trying to create with today's time of a horror film, and that is why there is no compromise to make sure it releases at the right time with the right quality. Okay, Nargis, आपसे जानना चाहेंगे. Nargis, how much do you believe in supernatural powers and this Amavas ki Raat and all in real life? I believe in God, so if there's God and good, then there must be hell and evil. Right? So I believe. सचिन सचिन मेरा सवाल आपसे है. हाय. जब आप देखते हैं स्केरियस वीएफएक्स और वीएफएक्स का आपने बहुत ज़्यादा जिक्र किया, लाइक नेवर सीन बिफोर. मतलब कहीं आपको ये लगता है कि जब मैं बॉलीवुड की बात करता हूँ या मैं हॉलीवुड की बात करता हूँ, स्पेशली मैं बॉलीवुड की बात करूँगी क्योंकि हिंदी सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, क्या हम अब तक वो कर नहीं पाए हैं जो आप करने जा रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से? क्योंकि वीएफएक्स पे आप बहुत जोर दे रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं. जब मैं VFX के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो इट्स अबाउट मेकिंग इट रियल, मेकिंग इट बिलीवेबल. ये नहीं कि मैंने कुछ अलग कुछ क्रिएट कर दिया, मतलब कोई फैंटेसी क्रिएट कर दी. सो इन दिस फिल्म अमावा स्पेसिफिकली, तो जो भी हमारे सीक्वेंसेस हैं या कहानी को जो नरेशन क्रिएट किया, तो उसको बिलीवेबल करना हैज बीन आवर टास्क. और वो चीज़ काफ़ी शॉर्टकमिंग्स में देख रहा हूँ कि हमारी बॉलीवुड हॉरर फिल्मों में रहा है. मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो दिखता है वो बहुत अलग होता है. सो दैट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर एंड इंश्योर कि इसमें ऐसा ना हो, इसमें वो इफेक्ट मिले, रियल बिलीवेबल हॉरर फिल्म लगे, इज व्हाट वी आर ट्राइंग. वैसे अगर आप देखेंगे बाहुबली है या पद्मावत है, उन्होंने जो किया VFX, आई मीन वी आर नॉट एनी शॉर्ट of making such big great movies like the way Hollywood has ever done. So we are as a country, as cinema, Bollywood is growing to that level, and I think आने वाले टाइमों में आप जो फिल्में देखेंगे, it's going to be at par of what Hollywood cinema is making. Any more questions? All right, so इसके पहले पलक प्लीज स्टे. इससे पहले कि हम फोटो ऑप करें, आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द गॉर्जियस वॉइस एंड द गॉर्जियस लेडी हरसेल्फ. पलक प्लीज कम ऑन स्टेज. या ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपको यहाँ से बिना 2 लाइनें गाए जाने दें? check. I would also like to call on stage Mr. Sanjeev Darshan and Mr. Aditya. Sanjeev Darshan ji, जिन्होंने music direct किया है, Aditya, the music arranger. Please, can we have you guys on stage? Check. So Palak, only if I could just compare and tell people कि आप ज़्यादा अच्छी दिखती हैं कि ज़्यादा अच्छी गाती हैं. You look as stunning as your voice and the songs are beautiful. I think event शुरू होने के पहले for 1 full hour हमने आपकी आवाज़ सुनी है, तो अब तो हम सबके जहन में आ गई है. आज हमें सपने आने वाले हैं भूतों के with your beautiful voice in the background, so that's going to be quite a सपना. बस सपने को हकीकत बनाते हैं. यहाँ पर 2 लाइनें आपके पसंदीदा गाने की from the film अमावस. Check. Yeah. Can you just increase the volume of the mic and give me some reverb, please? Whoever. Yeah, we're doing that. Reverb. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. 2 गाने हैं मेरी फिल्म में जो कि संजीव दर्शन जी ने कंपोज किए हैं. इतना सारा प्यार मिला है, इतने सारे मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पर. सो थैंक यू. हर गाने की तरह इस गाने को भी इतना सारा प्यार देने के लिए. एंड यस हियर्स धड़कन. एंड मैं चाहती हूँ संजीव जी अगर मेरा साथ दें. Mic check. Hello, mic check. On? I would like to wish beautiful. The whole cast and crew and Sachin sir, Narkesh ji, everybody, all the best for the film. And thank you so much, Bhushan sir, for using my voice for the song. Thank you. This was haunting and soulful at the same time. So thank you. And इसके आगे मैं जितना बोलूँगी वो कम लगेगा अब आपकी आवाज़ के बाद. So let's have a quick photo op. एक बढ़िया सी फोटो निकालते हैं, ladies and gentlemen. That's once again, I would like to remind you guys that the release date of the film Amavas now is 1st of February 2019.
Let's also have Shreya Kulkarni on stage, popular today as the Bhutni of the hour, stealing away the show this evening. Thank you so much, ladies and gentlemen, for sparing some time this evening. It was lovely meeting you.